ठीक है। तिकडेच विचारलं पाच त्याला एकदा घेऊन जावा बरातलं. नाही आता घेऊन जावा 10 मिनिटं त्याला घेऊन जावा. बाकीचे कुठे? तो घरीच आहे तो त्याला कृष्णा आणि देवाम ठीक आहे. 13, 14, 15 प्रोफेसर 37 तिला सोडून देऊ. तो एक दुसरा ठीक आहे. So now how to configure EIGRP? Same like your RIP, define the routing protocol, define the attached network, and define the interface bandwidth if you want to change. अगर bandwidth change करना है तो otherwise this is not compulsory. So only define your routing protocol which you want to configure and define the node networks which are directly connected to your router. So router EIGRP, this number is called as autonomous system number. This number can be anything of your choice, but it needs to be same between you and your neighbor router, because the parameters which should be same while forming a neighborship are 3 parameters which should be same: your autonomous system number and autonomous system number. बाकी पैरामीटर कौन सा है जो सेम होना चाहिए? Authentication password if you do provide. Third, ठीक है जो भी है देख लेना. This is the way you configure the protocol. Router EIGRP number, which is called as autonomous system number, and then you need to define your directly connected networks. If you want to specify the bandwidth under the interface, you can specify the bandwidth. This way you can configure. Protocol router EIGRP AS number, same like your RIP, define your connected networks. पढ़ लो और समझ लो. ठीक है. So this is how you configure. Define the routing protocol, define the connected network on either side, but make sure the AS number on both sides should be same. If you want to change the bandwidth, you can change, but that is not compulsory. How to verify? You have 3 tables to verify: your neighbor table, routing table, and your topology table. So this is your neighbor table. हमने discuss किया neighbor table में क्या क्या दिखता है. This is your specific neighbors. If you want to check,
ये हर एक चीज हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ये उस दिन डिस्कस हुआ था. The details will give you further information about how many packets are sent, how many packets are received through your neighbor. मतलब by default if you type show IP EIGRP neighbor सिर्फ इतना information दिखेगा. But details how many packets sent received वो एक extra information आपको दिख सकता है when you type show IP EIGRP neighbor details. Routing table we all know, show IP route. These stands for EIGRP. These are the networks, remote networks. Then you have reachable via. That means अब यहाँ पे सभी null zero में explain करता हूँ क्या. So these are summary routes, ठीक है. But जैसे ये ऊपर है ना, 117.17.0.0/16 it's a network which is reachable via 1.102. It is there into my routing table since 7 minutes 1 second, and it is reachable via my interface serial 0/0/1. Bracket में दो value है. First value is called as ठीक है, छोड़ दो. Second is your metric. Then show IP protocol will give you information about what protocol you have configured on your router. If it's EIGRP, it will tell information about EIGRP. If it is OSPF, everything about OSPF. If it is RIP, everything about RIP. So since we have enabled EIGRP, so show IP protocol gives information about which protocol is running. So it's saying EIGRP protocol 110 is running. These are the specific K values, K1, K2, K3, K4, K5. By default, all those K values will be same. But if you manipulate the K values on any one router, the neighbor should also be manipulated with the same K value setting. So K value always zero. Huh? K value always zero. Always Zero रहेगा constant. K1 is 1. Okay. K1, K3 is 1. That is bandwidth and delay. Discuss किया था ना? फिर K2, K4, K5, 0. This is by default. But if you deliberately change on any one router, then the neighbor also has to be configured with the same changes. Otherwise, your neighborship will not form. K2, K4, K5 always. हाँ, K values में सभी आता है क्या नहीं? मैंने K1 बोला था, K1 is always 1. K values will always be this. So जहाँ पे K1, K3 1 ही होगा, K2, K4, K5 always will be 0. बट इसमें से कोई भी एक अगर तुम लोग K वैल्यू मैनिपुलेट कर रहे हो करते हो तो सेम नेबर पे भी वो सेम चेंजेस होना चाहिए, अदरवाइज नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा. Then maximum paths it says 4. That means if router finds there are 5 paths to reach the destination, if all 5 are best, तो routing table में वो 4 स्टोर करेगा. Because by default it says maximum path 4. ये काउंट तुम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. That means if suppose 10 paths are there to reach the same destination, all 10 paths are best. So all the 10 paths will not be in part of routing table. Routing table में कौन सा 10 होगा? बेस्ट ही होगा, सभी बेस्ट है, लेकिन वो मैक्सिमम 4 को ही रखें. This count you can increase. Then routing तुम लोग किसके लिए कर रहे हैं? अपने डायरेक्टली करने नेटवर्क के लिए कर रहे हैं, तो नेटवर्क वहां पे दिखेगा. अदर इन्फॉर्मेशन गेटवे क्या है कि लास्ट अपडेट कब कितने देर पहले आया था, किसके थ्रू आया था. लोकल एडी नाउ EIGRP इंटरनल एडी इज 90, एक्सटर्नल एडी इज 170. ये 170 एक्सटर्नल क्या है ये हम लोग देखेंगे बाद में, और इंटरनल इज योर 90. जैसे बीजेपी का 200 इंटरनल है, 20 एक्सटर्नल है, वैसे EIGRP का भी इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक है. Then this is your topology table which gives information about the networks, the path to reach those network. Then it gives information about successor. It gives information about feasible successor, which is your secondary path. Then it defines the state of the route, whether the route is active or whether the route is passive. The first value in your bracket is called as first value in bracket is called as ये टोपोलॉजी टेबल. फर्स्ट वैल्यू कौन सा है? ठीक है, छोड़ दो.
देन ट्रैफिक स्वाइपी ईआईजीआर पे ट्रैफिक, इट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कितने अपडेट्स आए, कितने अपडेट्स गए, कितने क्वेरीज आए, कितने क्वेरीज गए, कितने क्वेरीज को रिप्लाई आया, कितने क्वेरीज को रिप्लाई गया, कितने को एक्नॉलेजमेंट मिला. So this all traffic, this SWIP EIGRP traffic will give you about all the EIGRP packets. कितने EIGRP पैकेट्स हैं? EIGRP में कितने पैकेट्स आते हैं? EIGRP में कितने पैकेट्स आते हैं? EIGRP में कितने पैकेट्स आते हैं? वो स्लाइड हुआ है ना पहले? कौन से? तू बता ना, क्रॉस चेक क्यों कर रहे हैं? बता सीधा. Passive interface. Now what do you mean by passive interface? If suppose आपको 0/0 के थ्रू कोई अपडेट सेंड नहीं करना है, तो आप वो इंटरफेस पे सिंपली पैसिव करके डिक्लेयर करोगे. अगर FA0/0 का अगर मैं पैसिव करके डिक्लेयर करता हूं, तो राउटर FA0/0 पोर्ट के थ्रू कोई भी हेलो पैकेट नेबर को सेंड नहीं करेगा. दैट मीन्स इफ R1 इज नॉट गोइंग टू सेंड एनी पैकेट वाया FA0/0, इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई दूसरा नेबर कनेक्ट है, उसके साथ आगे कोई भी नेबरशिप फॉर्म नहीं हो सकता. सो पैसिव इंटरफेस वी जनरली कॉन्फ़िगर when we don't want to form a neighborship with one specific neighbor. ठीक है, तो जैसे उसने डिक्लेयर किया पैसिव इंटरफेस 0/0, तो या फिर ये पोर्ट आपका नेबर राउटर भी हो सकता है, या फिर ये पोर्ट आपका लैन भी हो सकता है. When you configure EIGRP, let's say when you configure EIGRP on your 1.16.1.0 and 192.168.1.0 नेटवर्क, ये दोनों नेटवर्क पे जब EIGRP रन होगा, तो ये पोर्ट से भी हेलो जाना आना स्टार्ट होगा, ये पोर्ट से भी हेलो जाना आना स्टार्ट होगा. लेकिन ये लैन पोर्ट है, हमें लैन पोर्ट पे क्यों चाहिए? नीचे कौन कनेक्ट होगा? स्विच कनेक्ट होगा. स्विच को हेलो सेंड करके क्या मतलब है? EIGRP का हेलो. स्विच इज नॉट L3 डिवाइस. तो तुम लोग ये पोर्ट को पैसिव बना सकते हो. सो वंस यू कॉन्फ़िगर दिस पोर्ट एज पैसिव, वाया दिस पोर्ट अननेसेसरीली नो हेलोस नो अपडेट्स विल बी शेयर्ड, क्योंकि नीचे स्विच है, वो कोई राउटर नहीं है. ठीक है, तो ये पैसिव इंटरफेस तुम लोग अगर चाहते हो तो तुम लोग लैन साइड पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो. अगर तुम्हें याद होगा हमने RIP में किया था. ठीक है, RIP में हमने किया था ये HSRP कॉन्फ़िगर करते हैं. नीचे वाला जो लैन पोर्ट था तो हमने उसको किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि नीचे से कोई अपडेट जाएगा. Now this is the way to configure passive. प्रोटोकॉल के अंदर जाओ, पैसिव इंटरफेस और वो नंबर डालो. अगर तुम लोग पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट करते हो, तो एवरी सिंगल इंटरफेस विच इज प्रेजेंट ऑन योर राउटर, एवरी सिंगल इंटरफेस विल बी डिक्लेयर्ड एज पैसिव. तो क्या होगा? हाँ, तो उसके नेबर से वो नेबरशिप फॉर्म नहीं करते उसपे. कितने नेबर के साथ नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा? सभी. डिफॉल्ट होगा सभी. क्योंकि उसको जितने भी वैन इंटरफेस है, अगर तुम लोग पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट देते हो, तो जितने भी वैन इंटरफेस है सभी इंटरफेस पैसिव बनेगा. तो किसी भी पोर्ट के थ्रू हेलो सेंड जाएगा नहीं, आने का कोई चांस नहीं, तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा. तो तुम लोग दो ऑप्शन कर सकते हो. एक तो ऊपर डिक्लेयर करो पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट, और जिस इंटरफेस को पैसिव से बाहर निकालना है वो डिफाइन करो, नो पैसिव इंटरफेस. मतलब ये केस कब तुम लोग करोगे ऐसा कि पहले तो सभी को पैसिव बनाया, फिर बाद में जिसको पैसिव नहीं रखना है उसको पैसिव से बाहर निकालो. तो ये तुम लोग कब कर सकते हो? किसी को इंफॉर्मेशन नहीं सेंड करना, जैसे काफी सारे राउटर्स है कनेक्टेड और हमको किसी अदर्स के थ्रू वो ट्रैफिक नहीं सेंड करना, तो उसको पैसिव कर सकते. हाँ, मतलब देखो दो चीजें. एक तो तुम्हारे राउटर को अगर 10 पोर्ट्स है, ठीक है, उसमें से 8 पोर्ट को तुम्हें पैसिव करना है, 2 पोर्ट को नहीं करना है. तो दो ऑप्शन है. क्या? एक तो जो 8 पोर्ट को पैसिव करना है वो 8 पोर्ट को तुम लोग मेंशन करो, पैसिव इंटरफेस FA0/0, पैसिव इंटरफेस FA0/2, पैसिव इंटरफेस FA0/3. 8 को 8 कमांड से डिफाइन करो, या फिर पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट करो, हर एक को पैसिव बनाओ, और इमीडिएटली जिस 2 को नहीं करना है उसको बाहर निकालो. ठीक है, तो ये सिंपल रहेगा.
मैक्स टू मैक्स 3 कमांड में हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर कोई एक दो इंटरफेस ही बनाना है तो स्ट्रेट अवे तुम लोग कमांड से दो, पैसिव इंटरफेस सो एंड सो। और वो इंटरफेस का अगर बाहर निकालना है तो जैसे हम लोग पता है कि कुछ भी अगर अंडू करना है तो नो करके उस कमांड को निकाल सकते। लेकिन ध्यान रखना ये प्रोटोकॉल के अंदर राउटर EIGRP10, ये कोई इंटरफेस के अंदर वाला कमांड नहीं, क्योंकि ये EIGRP का फंक्शनलिटी है ना। RIP के टाइम पे भी हमने RIP के अंदर दिया था। अगर तुम्हें HSRP कॉन्फ़िगरेशन याद हो, RIP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने पैसिव इंटरफेस डिक्लेयर किया था। तो पैसिव इंटरफेस कोई एक राउटिंग प्रोटोकॉल का कंसेप्ट नहीं है, वो एक जनरल कंसेप्ट है, वो तुम लोग कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ उसको यूज कर सकते हो। स्टैटिक के साथ कर सकते हो, स्टैटिक के साथ कर सकते हो। पैसिव अगर कर रहे हो तो क्या होता है? हाँ, नेबर के साथ कनेक्शन। नहीं नहीं, वो क्यों नहीं होता? लेकिन कोड बंद हो जाता है। पोर्ट बंद नहीं होता, पोर्ट भी खोलना है। उस पोर्ट के थ्रू कोई भी हेलो अपडेट्स वगैरह जाता नहीं है। तो स्टैटिक में अगर ये चलेगा, तुमने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है और तुमने एक पोर्ट को स्टैटिक ये है पैसिव डिक्लेयर किया, नहीं चलेगा सर, क्योंकि उसको तो रिमोट कनेक्शन दिए है, लेकिन उससे अपडेट ही नहीं जाएंगे आगे। स्टैटिक किया, स्टैटिक पे ये किया तो चलेगा या नहीं चलेगा? हम्म नहीं चलेगा। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कोई डायनामिक है अपडेट हेलो वगैरह सेंड करने के लिए, तो उसको क्या लेना देना? उसको सिर्फ रिमोट कनेक्ट नेटवर्क पता है, लेकिन वो डेटा हाई वगैरह नहीं करेंगे। हेलोस, अपडेट्स, क्वेरी, रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट, ये डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का पार्ट है। स्टैटिक में तो जाता है। तो तुम लोग पैसिव जब डिक्लेयर करते हो तो वो पोर्ट से हेलो नहीं जाएगा, अपडेट्स नहीं जाएगा। स्टैटिक में कौन सा हेलो अपडेट है? वो तो खुद है, राउटर खुद को तुम लोग डिफाइन करते हो, ये नेटवर्क है उसको जाना है तो ये बात है। तो दो राउटर के बीच में कोई हेलो एक्सचेंज होता है, कोई अपडेट एक्सचेंज होता है नहीं, तो उस पर कोई ये मतलब नहीं बनता पैसिव इंटरफेस का। इफ यू टाइप शो आईपी प्रोटोकॉल अगेन, तुम्हें दिख सकता है कि कौन से पोर्ट्स आपके पैसिव डिक्लेयर्ड है करते। तो यू कैन यूज दिस कमांड शो आईपी प्रोटोकॉल। आपको शोरन में भी दिख सकता है, बट प्रोटोकॉल में आपको भी दिख सकता है। अभी आते हैं आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क कंसेप्ट क्या है। ये केस में लेट्स से 172 और लेट्स से R2 इज योर राउटर, R3 इज ISP। ये डिफॉल्ट है ना आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क, ये नीचे एक्सप्लेन करता हूँ ये स्लाइड। R3 इज योर ISP राउटर, R2 इज योर्स, R1 इज ऑल्सो योर्स, ठीक है। अब R3 के थ्रू आपको पूरा इंटरनेट रीचेबल है, वही एक राउटर जिसके थ्रू आपको पूरा इंटरनेट रीचेबल। तो अगर मान लो यहाँ पे 200 नेटवर्क्स है, यहाँ पे 200 नेटवर्क्स, R3 के R2 के राउटिंग, अब वो R3 को पता होगा, ठीक है, क्योंकि वो ISP का राउटर। अगर R3 और R2 के बीच में एक ISP राउटर है और एक R1 R2 तुम्हारी राउटिंग, तो R2 और R3 के बीच में कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल होगा नहीं। राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ पे है? ये तुम्हारे अंदर के क्लाउड पे, R2 R1 आगे जो भी तुम्हारे 50-60 राउटर्स है, उस पे तुम्हारा डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। R3 ISP का राउटर है और ISP का आगे का अपना क्लाउड, उस पे उनका राउटिंग प्रोटोकॉल चलता होगा, ठीक है। सो R3 और R2 के बीच में कोई भी एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं होगा, ठीक है। तो R3 इज नोइंग अबाउट ऑल द नेटवर्क्स विच इज बिहाइंड हिम, लेकिन वो नेटवर्क R2 को पता नहीं होगा, ठीक है।
तो ये आगे जो भी आपका क्लाउड है, इफ दे वांट्स टू कम्युनिकेट विद दिस नेटवर्क, मान लो जैसे ये R1 है, R1 को कम्युनिकेट करना है ये नेटवर्क के साथ, लेट्स से 171.50.0. अब इसको तो पता है, लेकिन ये R1 को नहीं पता होगा। R1 को क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि R2 को पता होता तो R2 R1 को अपडेट सेंड करता, लेकिन R2 के पास कहां से आएगा? अगर R3 R2 को बताता तो R2 के पास आता। R2 को कैसे R3 बताएगा? दोनों के बीच में कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है नहीं, तो R3 is not going to share any routing information with R2, so R2 will never have information about where is 170.15.50. अब R2 को नहीं पता तो R1 को कैसे पता होगा? तो फिर आपका लोकल नेटवर्क के यूजर्स वो नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? आप ब्रॉडबैंड लिंक लेते हो, आपका जो मोडेम है उसके राउटिंग टेबल में पूरा इंटरनेट आपको एक्सेस रहता है, पूरा इंटरनेट का इंफॉर्मेशन रहता है आपके राउटर के मोडेम के ऊपर। नहीं, पूरा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तुम लोग इंटरनेट 1 घंटे अगर इंटरनेट एक्सेस करते हो तो तुम लोग 100 जगह पे क्लिक करते हो, तो एवरी क्लिक इज अ डिफरेंट नेटवर्क, सो एवरी क्लिक इज अ डिफरेंट आईपी विच बिलोंग्स टू अ डिफरेंट नेटवर्क। तो वो नेटवर्क आप मान लो यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, तो फिर भी आपको पेज दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके राउटर को सभी नेटवर्क्स पता है। तो फिर कैसे पता होता है फिर? हम्म, this is your internet, this is your router, customer end, and this is provider end, PC। तुम लोग दिन भर इंटरनेट एक्सेस करते हो, ट्रैफिक ऐसे ही जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका पीसी है, जहाँ पे आप बैठे हो 192.168.1.10। तो इंटरनेट एक्सेस होता कैसे है? हम्म, इसके राउटिंग टेबल में ये कोई रिमोट नेटवर्क तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। तो इसके टेबल में एंट्री कहाँ से लाओगे? अगर इसके टेबल में एंट्री है तो ये कहेगा ठीक है, सेंड इट टू नीबर, और फिर इसको पता है ये ट्रांसफर कर देगा। इसके राउंड टेबल में जब तक एंट्री नहीं है रिमोट नेटवर्क की जिसके साथ आपको कम्युनिकेशन करना है, तब तक आपका राउटर के पास पैकेट आएगा लैन से, राउटर बोलेगा डिस्कार्ड, आई डोंट नो। तो इसके टेबल में एंट्री, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता तो एंट्री यहाँ से यहाँ पे आ जाता। अब डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है नहीं, तो इस फिर भी तुम्हें इंटरनेट एक्सेस कैसे हो रहा है? स्टैटिक दोगे? हाँ, कितने दोगे? 1000, 10,000, 20,000, 1 करोड़, 2 करोड़, कितने राउट्स दोगे? तो स्टैटिक पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? हाँ, तीसरा ऑप्शन क्या है? दिस इज लेट्स से 5.0 and this will be 5.2. एक डिफॉल्ट रूट, डिफॉल्ट मतलब क्या होता है? जीरो इंडिकेट्स एनी, जीरो ये स्टैटिक रूट ही है, लेकिन हमने कोई स्पेसिफिक नेटवर्क डिफाइन नहीं किया। ये जगह किसकी है? यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? आईपी रूट के बाद जो पहले लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? कनेक्टेड। हम्म, हम्म, किसका? कनेक्टेड। किसका लिखते हैं? हाँ, कनेक्टेड।
बोल, मला ऐकायला कमी येते, किती वेळा सांगितलं मी. नाही तर इथे येऊन बसत. हा, कुठला नेटवर्क? हा, हा नंतरचा पार्ट कुठेही सांगा ते. सबनेट मास्क हे काय आहे? हा, म्हणजे याला आपण काय म्हणतो? गेटवे, और यू कैन से एग्जिट इंटरफेस वाया विच नेबर और नेबर आईपी. तो यहाँ पे हम लोग कोई रिमोट नेटवर्क नहीं डाल रहे, यहाँ पे हम लोग कोई उसका सबनेट मास्क नहीं डाल रहे, हम लोग डाल रहे जीरो. जीरो दैट मीन्स वॉट एवर इज द रिमोट नेटवर्क. Zero indicates any. So 0.0.0.0 means whatever the remote network is. 0.0.0.0 that means whatever the subnet mask of the remote network is, send a packet to 5.2. तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट राउटिंग. इसको कहते हैं डिफॉल्ट राउटिंग. एक तुम्हारा स्टैटिक, एक तुम्हारा डिफॉल्ट, और एक तुम्हारा डायनामिक. डायनामिक तुम्हारा आरआईपी, EIGRP, OSPF, BGP सब कुछ. Static, you specify the remote network to which you want to communicate with. Default 0.0 डाल दो. तर मग ते डायनामिक वगैरे काही नाही, ते आपोआप फिल करेल. राउंड टेबल फिल करायची गरजच नाही. याला तुम्ही काय इन्फॉर्मेशन देता? तुझ्याकडे काही पॅकेट आलं, त्याचं काही रिमोट नेटवर्क असो, काही त्याचा सबनेट मास्क असो, घेणं देणं नाही. पॅकेट उचल 5.2 ला पाठवून दे, तुझा रोल कमी होतो. डायनामिक में क्या होगा? अनलेस अंटिल योर राउटर इज हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नेटवर्क इनटू हिज राउटिंग टेबल, राउटर इज नॉट गोइंग टू फॉरवर्ड. स्टैटिक में भी सेम है. अगर एक नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन, रिमोट नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन तुम लोग भूल रहे हो देना, तो वो नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में नहीं होगा, तो राउटर राउटिंग नहीं करेगा. डिफॉल्ट में आपको, आपने उसको क्या बोला? Zero indicates any, doesn't matter whatever the remote network is, whatever subnet mask of the remote network is, you are telling जो भी पैकेट आपको आता है उसका नेटवर्क कुछ भी हो, उसका सबनेट मास्क कुछ भी हो, पैकेट उठा 5.2 को सेंड कर. तो एक ही राउट काफी है दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. सी कस्टमर एंड राउटर को कोई लेना देना नहीं है रिमोट नेटवर्क किधर है क्या है, क्योंकि वो सब कुछ किसके थ्रू रीचेबल है? इंटरनेट राउटर के थ्रू. तो पता है तो भी इंटरनेट राउटर को ही सेंड करना है. अगर पता होता तो कौन बताता? पी राउटर ही पता था ना, तो उसका पाथ भी वाया पी ही होता ना. तो पता होता तो भी पी को ही सेंड करना है. तो पता रख के करना क्या है? पता है तो भी पी को सेंड करना है, नहीं पता है तो डिफॉल्ट राउटिंग वैसे भी पी को सेंड करने वाला. सो इन डिफॉल्ट राउटिंग you simply specify 0.0.0 that is remote network everything 0, subnet mask everything 0. 0 indicates any, that means ये remote network के जगह पे 0 लिखा है, इसका मतलब any remote network, doesn't matter whatever the remote network is, doesn't matter whatever the subnet mask of the remote network is, send a packet to 5.2. वो सीधा पैकेट उसके पास कहीं से दुनिया भर से नीचे से कहीं से भी ट्रैफिक आता है, पैकेट का डेस्टिनेशन देखेगा, फिर अपने राउटिंग टेबल में देखेगा. राउटिंग टेबल में क्या है कि कोई भी रिमोट नेटवर्क हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, टेंशन मतलब पैकेट उठा 5.2 को सेंड कर, तो 5.2 को सेंड करेंगे. ठीक है, तो कस्टमर एंड पे डिफॉल्ट राउटिंग ही होगा. स्टैटिक कितने नेटवर्क बताओगे तुम लोग राउटर को? 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 नेटवर्क बताओगे एक 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 करके. डायनेमिक दोनों के बीच में नहीं हो रहा, तो फिर क्या करोगे? डिफॉल्ट राउटिंग एक ही ऑप्शन है. तो डिफॉल्ट राउटिंग हमेशा इंटरनेट फेसिंग राउटर पे तुम लोग करते हो, मतलब तुम्हारा कस्टमर का राउटर जो इंटरनेट को कनेक्ट है उस पर डिफॉल्ट राउटिंग होता है. ठीक है, तो तुम्हारा R2 पे डिफॉल्ट राउट होगा बाहर कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब बाहर का जो नेटवर्क है उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए. तो R2 पे ये तुम्हारा R2 का लैन है. ठीक है, यहां से कोई भी पैकेट जनरेट होता है, वो पैकेट ये पोर्ट पे जाके हिट होगा. राउटर चेक करेगा डेस्टिनेशन क्या है. राउटर से लेट मी लुक इनटू माय राउटिंग टेबल. ही सेज आई डोंट नो बट आई हैव अ डिफॉल्ट रूट व्हिच सेज इफ यू डोंट नो नॉट एन इश्यू सेंड अ पैकेट टू 5.2. तो ये यूजर का तो काम बन गया ना, ये यूजर जो उसकी उसी के लैन को कनेक्ट है उसका काम तो बन गया. लेकिन जो यूजर ये तुम्हारा कस्टमर फेसिंग राउटर, सॉरी इंटरनेट फेसिंग प्रोवाइडर.
और ये तुम्हारा अंदर के राउटर से, ये तुम्हारा डोमेन है ना, इसका तो काम बन गया। इसके पास कोई भी पैकेट आता है राउटर के पास, राउटर कहेगा ओके आई डोंट नो बट आई हैव अ डिफॉल्ट रूट विच सेज इवन इफ यू डोंट नो नॉट एन इशू सेंड अ पैकेट टू नेबर 5.2 को सेंड करेगा। ये यूजर का काम बन गया। ये यूजर का क्या, ये यूजर का क्या, हाँ उसके नेबर को बताएगा। ये तुम्हारे क्लाउड में मान लो 100 राउटर से, तो ये लैन से नीचे अगर पैकेट आता है यहाँ पे, इसको पता है मुझे कुछ नहीं पता तो बाहर सेंड कर, इसका क्या करे, इसका क्या करे। त्याला कनेक्टेड आहे तर तो फरक समजेल ना, अपडेट टेबल शेअर करेल पुन्हा बरोबर नेबर ते एकच तर डोमेन मध्ये क्या शेयर करेगा। टेबल शेअर देखो ये तुम्हारा EIGRP है पूरा, बराबर। तुम लोग कह रहे हो इसके पास जो भी रहेगा वो इसको बताएगा, ठीक है। तुम लोग EIGRP क्या कॉन्फ़िगर करते हो, मान लो दिस इज 10.0, यहाँ पे तो प्रोटोकॉल है नहीं, लेकिन मान लो अगर जनरल अगर हम लोग बात करें, अगर मान लो तुम्हें सेकंड राउटर पे कॉन्फ़िगर करना होता है EIGRP, तुम लोग क्या करोगे। अच्छा, सेकंड राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने के पहले इसके राउटिंग टेबल में क्या होगा, सेकंड राउटर के राउटिंग टेबल में क्या होगा। सेकंड राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने से पहले उसके राउटिंग टेबल में क्या दिखेगा। कौन से, 3 2 3 4, ठीक है। तुम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करोगे, लेट्स से दिस इज AS नंबर, मान लो मैंने इतना ही दिया, क्या होगा अगर ये कॉन्फ़िगरेशन किया तो क्या होगा। हाँ नेटवर्क कमांड से मैंने 2 और 4 दिया, 3 नहीं दिए, क्या होगा। हे दुसरं तिसरं तेही त्याला कळालंच असतं की, हाँ 3 अगर तुम लोग नहीं दे रहे हो तो क्या होगा। हाँ तो का नेबर तो राउटर उसको सेंड करेगा लॉगिन देने किसको सेंड करेगा, 3 को। चलो ये 3 है ना, ये 3 है, ये 4 है, ये 1, हाँ बोल अभी। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में तुम लोग क्या पता होगा। से फाइंड करना उसको कनेक्टेड नेटवर्क पता होते हैं, रिमोट लोकेशन उनको फाइंड करना होता है जब हम उसको कनेक्टेड नेटवर्क दे देते हैं कैसे फाइंड आउट करता है, राउटिंग टेबल शेयर करके।
तो राउटिंग टेबल अगर शेयर होता है तो 3.0 R2 के राउंड टेबल में है, तो वो क्यों नहीं जाएगा सब? तुम्हारा राउटिंग टेबल शेयर नहीं होता, अपडेट शेयर होता। अपडेट में तुमने बोला है कि 3.0 शेयर कर नहीं बोला ना, तो ये 3.0 शेयर नहीं होगा। अगर तुम लोग वहां पे नेटवर्क 3.0 लिखते हो तो ही 3.0 बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। What your router should advertise, you need to specify by using a network command. अगर तुम लोग नेटवर्क कमांड सिर्फ 2.0 लिखते हो, सिर्फ 2.0 एडवर्टाइज होगा, बाकी एक कुछ एडवर्टाइज नहीं होगा। So if you want to advertise your LAN network, you have to specify the LAN network. कहाँ पे थे हम लोग? अभी बोलो। ये सभी पे EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है। डिफॉल्ट रूट तुमने इस पे कॉन्फ़िगर किया है, इसके टेबल में आएगा। तुम लोग जो कह रहे थे ना कि राउटिंग टेबल एक्सचेंज होता है, तो जैसे ही तुम लोग ये राउटर पे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करोगे, इस पे इसके अंदर राउटिंग टेबल के अंदर वो डिफॉल्ट रूट दिखेगा, तो वो इसको शेयर करना चाहिए। इसलिए ये क्यों एक्सप्लेन किया, ये कहने के लिए कि राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं होता। तो अपडेट में तुमने मेंशन किया है क्या 0.0, तो ये इसको 0.0 नहीं बता सकता। इसको क्या पता चलेगा? एट द मोस्ट ये लैंड नेटवर्क इसको पता चलेगा। इसके अंदर तुमने डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया है बाहर जाने के लिए, वो अंदर एडवर्टाइज नहीं करेगा, क्योंकि इस राउटर पे अपने नेटवर्क कमांड से क्या मेंशन किया होगा, ये 10.0 और ये मान लो ये 1.0। तो ये दो नेटवर्क, इसको 10 तो इसका लोकल कॉमन नेटवर्क है, तो वो तो उसको भी पता है, लेकिन सेकंड राउटर विल कम टू नो अबाउट 1.0। तो डिफॉल्ट नेटवर्क इसके पास है, इसका काम तो बन गया। इसके पास कोई भी पैकेट नीचे लैंड में से आता है, ये कहता है व्हाट इज द डेस्टिनेशन एड्रेस सो एंड सो, लेट मी लुक इनटू माय राउटिंग टेबल, माय राउटिंग टेबल सेज आई डोंट नो बट आई हैव अ डिफॉल्ट व्हिच सेज यू डोंट नो, नो इश्यूज, सेंड अ पैकेट टू 5.2। इसका काम तो बन गया। लेकिन ये लैंड यूजर का क्या? इस राउटर के पास भी डिफॉल्ट रूट होना चाहिए पॉइंटिंग टुवर्ड्स ये राउटर, ये राउटर के पास भी एक डिफॉल्ट होना चाहिए पॉइंटिंग टुवर्ड्स ये राउटर। जब इसके पास एक पैकेट आएगा, ये राउटर चेक करेगा नेटवर्क क्या है पता नहीं, बट आई हैव अ डिफॉल्ट रूट, सेंड इट टू नेबर, इसके पास आएगा पैकेट। ये राउटर पैकेट रिसीव करेगा, पैकेट चेक करेगा डेस्टिनेशन का, राउटर कहेगा आई डोंट नो डेस्टिनेशन बट आई हैव अ डिफॉल्ट रूट, इफ आई डोंट नो सेंड अ पैकेट टू द नेबर, ये इसको सेंड करेगा। जब इसके पास पैकेट आएगा, ये भी वही कहेगा आई डोंट नो डेस्टिनेशन बट आई हैव अ डिफॉल्ट रूट व्हिच सेज आई डोंट नो, नॉट एन इश्यू, सेंड इट टू नेबर, पैकेट जाएगा इंटरनेट के थ्रू बात। लेकिन उस केस में क्या हुआ, एवरी सिंगल राउटर नीड्स टू बी कॉन्फिगर्ड विद डिफॉल्ट रूट। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर दो राउटर है तो दो तीन राउटर तो ठीक है, एक 3 राउटर पे तुम लोग डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करोगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेबर। अब इस पे डिफॉल्ट रूट इस डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर करोगे क्या? कोई मतलब है क्या इस डायरेक्शन में पैकेट सेंड करके? तो वो तो लॉजिक है ना, जिस डायरेक्शन में इंटरनेट है उसी डायरेक्शन में आप नेक्स्ट स्टॉप दोगे। तो चलो ठीक है, फिर भी 2-3 राउटर तो तुमने दे भी दिया, वो काम बन गया। लेकिन तुम्हारे नेटवर्क में अगर 100 राउटर्स है तो हर एक राउटर पे तुम्हें डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना होगा। तो उसके बजाय हम लोग क्या करते हैं कि वो जो नेटवर्क है वो डिक्लेयर करता है कि ये डिफॉल्ट नेटवर्क है, और हम लोग EIGRP में अंदर जाके ये डिफाइन करते हैं कि ये डिफॉल्ट नेटवर्क है, ये प्लीज अंदर एडवर्टाइज कर। तो ये R2 पे कमांड चलेगा, तो R2 क्या करेगा, ये नेटवर्क एज डिफॉल्ट करके डिक्लेयर करेगा। देखो ये EIGRP के अंदर कॉन्फ़िगर। तो ये क्या करेगा राउटर कि हमने कहा है कि प्लीज डिक्लेयर 107.31.0.0 एज अ डिफॉल्ट नेटवर्क। तो EIGRP फिर ये नेटवर्क भी अंदर के राउटर्स को एडवर्टाइज करेगा। तो ये स्पेसिफिक दिया है, तुम लोग आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क 0.0.0.0 भी दे सकते हो, क्योंकि ये केस में क्या था, मे बी यही नेटवर्क था बाहर जिसको उनको रीच करना है, इसलिए वो नेटवर्क स्पेसिफिक दे दिया। लेकिन अगर तुम्हें पूरा इंटरनेट रीच करना है तो तुम लोग क्या दोगे, आईपी डिफॉल्ट नेटवर्क 0.0.0.0, ये EIGRP के प्रोटोकॉल के अंदर तुमने दिया, तो तुमने डिक्लेयर किया कि दिस इज अ डिफॉल्ट नेटवर्क, प्लीज एडवर्टाइज दिस डिफॉल्ट नेटवर्क टू द नेबर।
तो फिर ये R2 R1 को बताएगा। जब R1 पे ये डिफॉल्ट रूट ऑटोमेटिक दिखेगा, ये डिफॉल्ट रूट है ना, R1 पे ऑटोमेटिक दिखेगा, हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो सिर्फ R1 पे नहीं, ये R2 क्या कर रहा है, R2 के प्रोटोकॉल की, EIGRP के प्रोटोकॉल के अंदर जाके तुम लोग लिख रहे हो कि डिक्लेयर दिस नेटवर्क एज डिफॉल्ट। तो ये EIGRP का अपडेट बनेगा अभी। अब ये EIGRP के अपडेट के थ्रू R1 को जाएगा और R1 फिर उसको EIGRP के अपडेट थ्रू वो सबको बताएगा। समझ में आ रहा है? सो ये केस में अगर R2 पे कोई डिफॉल्ट रूट है तो उसका तो काम होता है कि वो तो कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन R1 नहीं कर पाएगा। सो आपको R1 पे भी डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना होगा, उसके नीचे जो राउटर है उसके पीछे भी डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना होगा। दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो आपने सीधा R2 पे जाके डिक्लेयर किया कि ये डिफॉल्ट नेटवर्क है, तो R2 क्या करेगा, अंदर के पूरे क्लाउड पे EIGRP है, तो R2 का नेबर R1 है, R2 R1 को वो डिफॉल्ट नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ IP डिफॉल्ट नेटवर्क। देखो अगर तुम लोग ये शो IP रूट R2 का राउंड टेबल में क्या है, तुमने एक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, और ये डिफॉल्ट रूट तुम लोग IP डिफॉल्ट नेटवर्क से एडवर्टाइज करोगे। देखो क्या एडवर्टाइज करना है, पहले वो डिफाइन करो। मतलब एक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना होगा R2 पे। पहले क्या था, R2 पे तुमने डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया, R2 वो पीछे एडवर्टाइज कर रहा था, नहीं कर रहा, वो उसी के पास रहना। तो इसका तो काम बन रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि एक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर हो और वो उसके अंदर वाले राउटर को एडवर्टाइज भी करे। तो एडवर्टाइज भी करे तो सबसे पहले डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर तो करना होगा आर ये राउटर पे। तो सबसे पहले तुमने डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, और फिर बाद में फिर ये कमांड से प्रोटोकॉल के अंदर IP डिफॉल्ट नेटवर्क 0.0.0.0 डालो। मतलब पहले डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया ये राउटर पे, ठीक है, और फिर इस राउटर को कहा कि ये डिफॉल्ट रूट अंदर इंजेक्ट कर। तो इसके अंदर तुमने डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया, ये IP राउट है, लेकिन शो रन में दिखेगा ना तुम्हें, तुमने कॉन्फ़िगर किया तो IP रूट 0.0.0.0 सबनेट मास्क देन वाया ये जो नेक्स्ट स्टॉप है। तो R2 पे तुमने डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया। अब R2 ये एडवर्टाइज कर रहा है कि R1 को, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि EIGRP को बताना होगा कि ये डिफॉल्ट रूट भी अंदर एडवर्टाइज कर करके। तो इसके पास तो डिफॉल्ट रूट तुमने R2 पे कॉन्फ़िगर किया, तो ये कमांड से तुम लोग बोलोगे IP डिफॉल्ट रूट 0.0.0.0 ये एक डिफॉल्ट नेटवर्क, ये भी तू एडवर्टाइज कर, तब जाके R1 के पास दिखेगा। तो R1 के पास अगर तुम लोग राउंड टेबल के अंदर दिखोगे तो डिफॉल्ट रूट तुम्हें दिखेगा। स्टार मतलब डिफॉल्ट, लेकिन ये एस देखो यहाँ पे एस स्टार है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट रूट का जो सिंबल है एस स्टार है। स्टैटिक का क्या सिंबल है, एस। एस स्टार मतलब डिफॉल्ट रूट, लेकिन ये डिफॉल्ट रूट R2 ने R1 को एडवर्टाइज किया, इसलिए EIGRP का डिफॉल्ट रूट बता रहा है। समझ में आ रहा है, ये EIGRP ने एडवर्टाइज किया हुआ डिफॉल्ट रूट है, इसलिए यहाँ पे एस स्टार नहीं आ रहा, डी स्टार। यहाँ पे एस स्टार कब आता, जब तुम लोग R1 पे मैन्युअली डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करोगे IP डिफॉल्ट रूट कमांड से, तब यहाँ पे IP रूट और वो 0.0 कमांड से R1 पे दोगे, तब सेम ऐसा दिखेगा। लेकिन ये डिफॉल्ट रूट R2 पे है, R2 R1 को एडवर्टाइज कर रहा है थ्रू EIGRP, इसलिए वो R1 को पता चला, इसलिए R1 कहता है कि दिस इज अ डिफॉल्ट रूट बट इट इज एडवर्टाइज्ड बाय EIGRP टू मी, सो इट्स अ EIGRP डिफॉल्ट रूट। तो तुम्हें ये दिखने के बाद पता चलेगा कि ये तुमने मैन्युअली कॉन्फ़िगर नहीं किया, बल्कि ये नेबर से एडवर्टाइज हुआ है डिफॉल्ट। ठीक है, समराइजेशन हमें डिस्कस किया, ये भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। ऑटो समराइजेशन का ड्रॉबैक क्या है, अगर 1.0 2.0 दोनों किसके मेंबर है, 116.1.0 116.2.0 किसके मेंबर है, ये नेटवर्क किसके मेंबर है, ये सब नेटवर्क है या मेजर नेटवर्क है,
116.1.0 और 116.2.0 ये सब नेटवर्क है, मेजर नेटवर्क है। मेजर मेजर किसके? ये 176.1.0 172.16.2.0 ये मेजर नेटवर्क है, सब नेटवर्क है। सब नेटवर्क है। क्लास बी का स्टैंडर्ड क्या है? स्लैश 16। यहाँ पे अगर स्लैश 16 होता तो वो सब नेटवर्क होता, तो वो मेजर नेटवर्क होता। ये तुमने स्लैश 24 यूज किया, ये अगर सी का रहता स्लैश 24 तो वो मेजर नेटवर्क था। ये बी का नेटवर्क तुमने एडवर्टाइज किया है और स्लैश 24 यूज किया तो वो सब नेटवर्क बना। तो ये सब नेटवर्क इस तरफ से आएगा। R1 पे अगर एटो समराइजेशन है, R3 पे अगर एटो समराइजेशन है तो वो क्या करेगा? R1 क्या एडवर्टाइज करेगा? ये एडवर्टाइज करेगा 116.0.0। R3 भी क्या एडवर्टाइज करेगा? 116.0.0। R2 के पास दो राउटर है तो लोड बैलेंसिंग करेगा। मगर अगर R2 के पास नीचे से कोई पैकेट आता है जिसका डेस्टिनेशन 2.10 है तो वो एक पैकेट यहाँ पे सेंड करेगा, एक पैकेट यहाँ पे सेंड करेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा तुम्हें? ऑटो समराइजेशन डिसेबल करके मैनुअल समराइजेशन कॉन्फ़िगर करना होगा। वो हो गया तुम्हारा। मैनुअल समराइजेशन करने का कमांड है ये, तुम्हारा कमांड। जिस इंटरफेस के थ्रू अपडेट सेंड करना है समराइज फॉर्म में, वो इंटरफेस के अंदर जाओ। पहले तो ऑटो समरी बंद करो। नो ऑटो समरी प्रोटोकॉल के अंदर बंद करोगे और मैनुअल समराइजेशन करना है तो आईपी समरी एड्रेस, EIGRP, AS नंबर और ये समराइज राउट तुम लोग लिखोगे। समराइज राउट कैसे फाइंड आउट करना है? हाँ, ऑटो समराइजेशन मैनुअल समराइजेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ, ऑटो समराइजेशन डिफरेंस क्या है? ऑटो समराइजेशन मैनुअल समराइजेशन में डिफरेंस क्या है? ठीक है, हो गया वो तुम्हारा, देख लेंगे। वेगळे वेगळे सगळे ऐसा नेटवर्क अगर वो पता होता तो मैं ये एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन वो तुम्हें याद नहीं है तो एक्सप्लेन करने में आधा घंटा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पता होता समराइजेशन मैनुअल समराइजेशन कैसे करना है तो 2 मिनट का ये काम था। अब वो तुम्हें नहीं पता तो ये नल जीरो तुम आइडेंटिफाई करो क्या है। चलो ये पढ़ो। हो गया? हम्म। साइज डिक्रीज करना है।
हो गया? आगे तो ठीक हो माझा विभाग मला लक्षात आलं इंडिया करत नाही काय नाही. इकडे आल्यानंतर माहिती होत तुम्ही माहितच नाही. शब्द ऐकले की बोलते. पहिली गोष्ट ऐकली सगळ्यांना वेगळं. ते ऐकू देत. मग त्याचं नाउ लोड बैलेंसिंग अक्रॉस इक्वल मेट्रिक मतलब क्या? लोड बैलेंसिंग अक्रॉस इक्वल मेट्रिक त्यांचे मॅट्रिक्स सेम ज्याचे मॅट्रिक्स सेम असतील सेम मॅट्रिक्सचे दोन जसं 5 असतील त्यांच्यामध्ये बोलतात. So by default it says up to 16 entries can be in routing table for the same destination. Default is 4. तो ये तुम लोग मैक्सिमम पाथ ये तुम लोग कम ज्यादा कर सकते हो. कितने पाथ आपको राउंड टेबल में चाहिए? अगर राउटर आइडेंटिफाई करता है कि 4 पाथ है या लेट से 6 पाथ है, 6 पाथ का सेम मेट्रिक है डेस्टिनेशन को जाने के लिए, तो ऑल 6 आर बेस्ट. तुम्हें राउंड टेबल में कितना चाहिए? यू कैन स्पेसिफाई मैक्सिमम पाथ वैल्यू. तो वो अगर तुम लोग 2 स्पेसिफाई करते हो 2 ही रखेगा. नाउ R1 से डेस्टिनेशन तक भाया R2 FD कितना है? R1 से भाया R2 FD कितना है डेस्टिनेशन के जाने के लिए? 40. फिर भाया R3 हाँ भाया R4 भाया R5 60. तो भाया R2 भाया R3 भाया R4 ये तीनों पाथ सेम मैट्रिक प्रोवाइड कर रहे हैं. इसका मतलब क्या होगा? 3 बेस्ट पाथ. तो इफ यू लुक इनटू योर राउटिंग टेबल में तीनों दिख रहा है. योर फर्स्ट राउटर R1 says to communicate with 2.0 I have 3 paths via 1.2 via 2.2 via 3.2. क्यों दिख रहा है तीनों? क्योंकि तीनों बेस्ट. अगर तीनों में से कोई तो एक ही बेस्ट होता तो एक ही दिखता, बाकी के कहाँ पे दिखते? टोपोलॉजी टेबल के अंदर. बट your router is able to see show all 3 because all 3 are best because all 3 are having the same metric. तो यहाँ पे क्या होगा? राउंड टेबल में तीनों पाथ आने के बाद क्या होगा? तीनों से जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? हाँ इसका मतलब क्या होगा अभी? सक्सेस तू उद्यापासून इथून बसत आहे. कारण का तू त्याला सांगून काय उपयोग आहे का? त्याच्या कानात का सांगतोस रोज? इथून बसत तर मला सांगतो. हा बोल. लोड बॅलन्सिंग होतं त्याला आपण काय म्हणतो? कुठल्या टाईपचं लोड बॅलन्सिंग येतं? इक्वल मेट्रिक लोड बॅलन्सिंग. अनइक्वल मेट्रिक लोड बैलेंसिंग भी तुम लोग कर सकते हो. एक स्लाइड सबसे पहले हमने डिस्कस किया था. EIGRP is a protocol which supports equal metric as well as unequal metric load balancing. Which routing protocol support equal metric load balancing? Which routing protocol supports equal metric load balancing? Which routing protocol supports equal metric load balancing?
RIP, OSPF तभी करते हैं अगर दो पाथ है, दोनों का मेट्रिक, हर एक को मेट्रिक है ना, आरआईपी का मेट्रिक है, ईएचआरपी का मेट्रिक है, ओएसपीएफ का मेट्रिक है। कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, अगर दो पाथ दिखते हैं, दोनों का मेट्रिक सेम निकला तो दोनों बेस्ट है, दोनों राउंड टेबल के अंदर आएगा। सो लोड बैलेंसिंग होगा, इसका मतलब वो किसको तुम लोग क्या कहोगे, इक्वल मेट्रिक लोड बैलेंस। दैट मीन्स व्हेनेवर द मेट्रिक इज इक्वल, एट दैट टाइम लोड बैलेंसिंग विल टेक प्लेस। तो मेट्रिक इक्वल हुआ तो वही लोड बैलेंसिंग होगा, which is supported by every single routing protocol. EIGRP is the only routing protocol which also supports unequal metric load balancing. मतलब क्या? अनइक्वल मैट्रिक्स होंगे दो पाथ्स के, फिर भी उसको कॉन्फ़िगर That means even if there are two paths with different metrics, still both paths can be used to transfer your data. By default करेगा वो, नहीं करेगा, उसको बताना पड़ेगा, ठीक है? So that you can do by using a command called as variance. You can do by using a command called as variance. ये टू वगैरह क्या वो डिस्कस करते हैं हम लोग। These all are your FDs of different paths. हर एक पाथ का एक FD होगा ना। बेस्ट पाथ कौन सा है? सबसे ऊपर वाला क्यों? उसका एफडी कम है, उसके FD सबसे कम है। उसके FD सबसे कम क्यों है? इसके 4 फैक्टर जो है Bandwidth और delay. वो फ्लक्चुएटिंग नहीं होंगे, स्टेबल होंगे। Calculation उसका. कैलकुलेशन हाँ? कैलकुलेशन ऊपर वाले पाथ के FD सबसे कम क्यों है? तू इथे येऊन बसायचं होतं. हा, तू इथे बसायचं आणि तू इथे बसायचं आणि मला इथून हळू सांगितलं तरी चालेल. हाँ, ऊपर वाले पाथ के FD कम क्यों है? हाँ, बोलो. हाँ, अरे बँडविड्थ आणि डिले त्याच्यामुळे. अरे याला काय काय लॉजिक आहे का? काहीतरी सांग ना मला, ते काय कमी आहे का जास्त आहे काय? कैलकुलेशन हाँ, लोएस्ट कॉस्ट, त्याचा फॉर्म्युला काय आहे? क्या है मेट्रिक्सचा फॉर्म्युला काय आहे? Given in 10⁻⁷. upon lowest bandwidth हाँ to summation of delay. हाँ प्लस हाँ, मग आता त्याची 50 काय आहे? 50 FD कसं आलं? ते lowest bandwidth आहे त्यांनी डिवाइड केलं 10⁻⁷ प्लस हे हाँ, सांगता येत नाही. ट्रान्सफर
अरे का त्याचा लोएस्ट आहे? ते 50 FD कसं आलं? हम्म. ठीक आहे. सोडून त्याचा का पॉइंट? म्हणजे झालेल्या गोष्टीवर हे डिपेंड आहे की झालेली गोष्ट जर तुम्ही मला सांगू शकत नसाल तर मी परत त्याच्यावर 10 मिनिटं का घालू? फिफ्टी FD त्याचा 50 FD काय? हम्म. हम्म. सांगणार आहे का नाही? हम्म. नाही करणार. लोएस्ट FD काय आहे याचं? त्याला पोस्ट डेस्टिनेशन वर जायला नाही. सोर्स टू डेस्टिनेशन वर जाण्यासाठी बेस्ट पाथ भेटलं त्यांचं जे कॅल्क्युलेशन होते सर्वात कमी होतं. हा बेस्ट पाथ म्हणजेच FD कमी ना? मग ते FD कमी का? चलो ये घर पे देख लेना क्या वेरिएंस. सांग. पहिले मी खूप वेळ घालवला पण मला लक्षात आता आलंय तुम्ही काही करत नाही घरी. ठीक आहे. When you implement variance, then your routing table will show information about multiple paths, even if the metric is different. So variance is a mechanism by which you can implement unequal metric load balancing. So unequal metric load balancing is only supported by EIGRP. RIP, OSPF, BGP doesn't. But EIGRP, if you want to carry out unequal metric load balancing, you have to take help of variance. As a numerical value of 2, this value depends upon how many paths you want to include into load balancing. पण हे 2 म्हणजे 2 पाथ इन्क्लूड होणार, 3 म्हणजे 3 पाथ इन्क्लूड होणार असं नाही. ते तुम्हाला ते अगोदर नाही कळलं, मी परत त्याच्यावर 10 मिनिटं कसं सांगणार ते एक्सप्लेन करणार. Now the next chapter is EIGRP authentication. ये पढ़ लो.
इसमें कुछ डाउट? अंतर नहीं है. हाँ, फॉल्स राउटिंग टेबल फॉल्स म्हणजे कसं की समजा तू एक राउटर तुला कनेक्टेड, ठीक आहे. आता R1 हा तुझा राउटर आहे. तू तुझ्या राउटरवरती काय करणार, राउटर EIGRP एंटर, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर टाकून एंटर करशील, हे नेटवर्क ऍडव्हर्टाइज करशील, हे नेटवर्क ऍडव्हर्टाइज करशील. आता हा जो राउटर आहे, कोणी येऊन समजा तुझ्या राउटरला केबल लावली, तर त्याला काय हे नेटवर्क तर माहित असणार, आणि हे नेटवर्क तिने ऍडव्हर्टाइज केलं, दोघांच्या मध्ये नेबरशिप फॉल्ट होईल. फॉल्स राउटिंग म्हणजे काय की now 3.0 belongs to your second router, right? And this router is not yours. This router is not yours. अगर ये बंदा अपने ये इंटरफेस पे 3.0 कॉन्फ़िगर करता है, 3.0 मतलब लैन सेगमेंट, ये पोर्ट पे का आईपी देता है 3.1, तो ये भी एडवर्टाइज करेगा 3 का, ये भी एडवर्टाइज कर रहा है 3 का. तो इससे हुआ क्या, ये राउटर के पास अगर गलती से, उसको थोड़ी पता है जेन्युइन 3 कहां पे, उसके लिए गलती से अगर ये बेस्ट पाथ निकला, उसको ये नहीं पता कि ये 3 मतलब यही 3 है, उसके पास डायग्राम नहीं होता सामने की, बाबा ये 3 इधर वाला है, ये 3 इधर वाला है. उसको एक सिंपल ब्लाइंड माइंडसेट होगा, ठीक है 3 के लिए मेरे को 2 पाथ है, गलती से ये बेस्ट पाथ निकला तो पूरा 3 का ट्रैफिक जो भी इसको जाना है वो यहाँ पे तरफ जाएगा, यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं जाएगा. तो ये फॉल्स राउटिंग अवॉइड करने के लिए, देखो तुम्हारे बीच में फॉल्स राउटिंग होगा क्या, आपका कंपनी अब गलत क्यों कॉन्फ़िगर कर, ठीक है, और गलती से अगर गलत टाइप भी किया तो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, तुम लोग उसको रेक्टिफाई. लेकिन अगर कोई दूसरा राउटर लेके अगर कनेक्ट कर रहा है उसको, तो वो फॉल्स राउटिंग हो सकता है. इसलिए ये दोनों के बीच में कोई भी शेयर हो तो विदाउट ऑथेंटिकेशन नहीं होना चाहिए. जब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पासवर्ड तुम लोग कॉन्फ़िगर करोगे, वो पासवर्ड इसको कैसे पता होगा, अगर उसमें पता है तो ही वो ऑथेंटिकेशन होगा, तो ही आपका एक टेबल एक्सचेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो अगर आप ISP और आपके बीच में अगर राउटिंग प्रोटोकॉल रन करते हो तो वहां पे ऑथेंटिकेशन होता है. तो अगेन इट इज नॉट कंपल्सरी, बट इफ यू वांट यू कैन प्रोवाइड, ठीक है. Now simple password authentication supported by OSPF, RIP, MD5 मतलब क्या, encrypted message digest file, it an encryptor which encrypts your password and then it will be shared. ये प्लेन टेक्स्ट सिंपल पासवर्ड मतलब यहाँ पे इंक्रिप्शन कंसेप्ट नहीं है, जो प्लेन पासवर्ड है वैसे का वैसे ही जाएगा हेलो पैकेट के अंदर, यहाँ पे इंक्रिप्ट हो गया. सो इंक्रिप्शन कौन सपोर्ट करता है, EIGRP, OSPF, RIP वर्जन 2, BGP. इसका मतलब इंक्रिप्शन कौन सपोर्ट नहीं करता, हाँ इंक्रिप्शन कौन सपोर्ट नहीं करता, कौन सपोर्ट नहीं करता. ऑथेंटिकेशन के 2 टाइप, एक तो प्लेन टेक्स्ट, एक तो इंक्रिप्टेड. प्लेन टेक्स्ट मतलब आपका पासवर्ड हेलो पैकेट के अंदर ऐसा क्या ऐसा जाएगा दिखेगा वो. इंक्रिप्टेड मतलब क्या, पासवर्ड इंक्रिप्ट होके जाएगा. तो कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन सपोर्ट नहीं करता, इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता. करता है वो, हाँ. कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल जैसा कि MD5 ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता, अरे जितने भी ये सब दिए ना नीचे, तो मतलब हर एक करता है. RIP दिया है, OSPF दिया है, BGP दिया है, EIGRP दिया है, तो सभी करते हैं. तो अगर कोई ऐसा पूछेगा तो तुम सोच के बैठोगे क्या कौन सा नहीं करता, सीधा बोलो ना सब करते हैं करके. लेकिन OSPF RIP दोनों सपोर्ट करता है, आपका इंक्रिप्शन भी सपोर्ट करेगा और MD5 भी सपोर्ट करेगा.
ठीक है, लेकिन बाकी के प्योर MD5 सपोर्ट करेंगे। चलो पढ़ लो फटाफट। ये की वगैरह समझ में आ जाएगा की क्या आएगा। हाँ, प्रत्येक राउटिंग प्रोटोकॉल इम्प्लिमेंट करायच्या अगोदर त्याचं डॉक्युमेंटेशन बनतं, त्याला आपण RFC म्हणतो. म्हणजे OSPF चा एक RSP आहे, PIGRP प्रत्येक प्रोटोकॉलचा. तो टेस्ट होतो, व्हेरीफाय होतो, त्याच्यानंतर तो डोमेन मध्ये येतो. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी, जसं PhD ला प्रत्येक गोष्टीला तुमचं डॉक्युमेंट बनतं. कुठलाही नवीन इन्व्हेन्शन केलं तो OSPF जेव्हा इन्व्हेंट झाला तेव्हा त्याचे RFC बनले. तसंच कुठलाही राउटिंग प्रोटोकॉल किंवा कुठलाही जगातला कुठलाही प्रोटोकॉल, राउटिंगच असं नाही, जगातली कुठलीही गोष्ट नेटवर्क किंवा सिस्टीम मध्ये जी इन्व्हेंट होते ती पहिली टेस्ट केली जाते, त्याची RFC बनते, डॉक्युमेंटेशन बनतं आणि त्याच्यानंतर मग तो तुमचा पब्लिक डोमेन मध्ये येतो. ठीक है, नाउ EIGRP supports authentication with the help of keychain. Keychain मतलब क्या? जहां पे मल्टीपल कीज होती, राइट? सो बिटवीन R1 and R2 you can have multiple keys, how many you want. Let's take for an example, तुम लोग 3 की लेते हो, की 1, की 2, की 3. यहाँ पे भी की 1, की 2, की 3. की 1 को एक पासवर्ड दोगे तुम लोग, की 2 को दूसरा पासवर्ड दोगे, सेम पासवर्ड देने का कोई लॉजिक नहीं है. तो R1 पे तुमने 3 की कॉन्फ़िगर की, की 1 विद सिस्को, की 2 विद सिस्को 1, 2, 3 एंड की 3 विद लेट्स से सिस्को 4, 5, 6. वो सेम R2 पे भी सेम पासवर्ड होना चाहिए, पहले की का क्या, दूसरे की का क्या और तीसरे की का क्या. ठीक है, अभी मल्टीपल कीज क्यों है? एक ही सिंपल सा की रखते या फिर की कंसेप्ट ही नहीं रखते. तो तुमने कंसेप्ट क्या होता, एक पासवर्ड होता. R1 पे तुम लोग कॉन्फ़िगर करोगे, वॉट एवर यू आर गोइंग टू सेंड दैट विल फर्स्ट नेबरशिप में ऑथेंटिकेशन होगा. ऑथेंटिकेशन होगा तो तुमने R1 साइड पे एक पासवर्ड दिया, वो सेम पासवर्ड जैसे तुमने इंटरवीलर में तुम लोग करते हो बिटवीन VTP डोमेन में, सर्वर क्लाइंट के बीच में. तो तुमने VTP पासवर्ड सिस्को दिया फर्स्ट डिवाइस पे, सेकंड डिवाइस पे भी VTP पासवर्ड सिस्को दिया. अब वो पासवर्ड एक बार मैच हुआ, डेटाबेस तुम्हारा शेयर होगा. अब वो पासवर्ड लाइफ लॉन्ग वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा अनलेस एंड अंटिल यू चेंज. तो यहाँ पे EIGRP का एडवांटेज क्या है, यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स विद डिफरेंट डिफरेंट कीज. तो पहला की का लाइफ टाइम आप डिफाइन कर सकते हो कि पहला की आज स्टार्ट होगा, आज 25 है, 1:30 पे पहला की स्टार्ट होगा, वो खत्म होगा 27 तारीख को 1:30. दूसरा की स्टार्ट होगा 27 तारीख को 1:30 पे, वो खत्म होगा 29 तारीख को 1:30. हाँ हाँ, हम लोग डिफाइन कर, जो टाइम हमें चाहिए वो डिफाइन कर सकते. तीसरा की स्टार्ट होगा, लेकिन एंडिंग ऑफ फर्स्ट की और स्टार्टिंग ऑफ सेकंड की के बीच में पॉज नहीं होना चाहिए. उसके बीच में अगर पॉज हुआ तो ऑथेंटिकेशन डाउन होगा. तो इमीडिएट या फिर थोड़ा बफर रखो. दूसरा की पहले की खत्म होने के 1 मिनट पहले का स्टार्टिंग टाइम दो, तो वो 1 मिनट में दोनों की रहेगा. फर्स्ट की भी काम कर रहा है, सेकंड की भी काम कर रहा है, लेकिन फर्स्ट की एप्लीकेबल होगा, जैसे ही फर्स्ट की का टाइम खत्म होगा सेकंड की स्टार्ट होगा.
ओवरलैपिंग ऑफ कीज। तो वैसे तुम लोग कितने भी कीज डिफाइन कर सकते हो। तो मान लो अगर कॉर्पोरेट में अगर एक दो राउटर के बीच में जनरली कैसा होता है, जब ऑथेंटिकेशन कोई कॉन्फ़िगर करता है ऐसा कुछ नहीं, जनरली होता भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें करना है तो कैसे करोगे, हर महीने की पहले डिफाइन कर, पहले ही दिन कॉन्फ़िगर करके रख दोगे। कॉन्फ़िगर तो एक ही टाइम करना है ना, जब वो खत्म होगा टाइप वो दूसरा की कॉन्फ़िगर करोगे क्या, नहीं ना। तो महीने के पहले दिन में पूरा महीने का कीज कॉन्फ़िगर करोगे कि पहला की कब स्टार्ट होगा, वो एक हफ्ते के बाद वो खत्म होगा 7 तारीख को। 7 तारीख को 1:30 में पहला की खत्म होगा। दूसरा की पहले दिन ही कॉन्फ़िगर करके रखोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। वो दूसरा की अप्लाई कब होगा, 7 तारीख को 1:30 के बाद वो अप्लाई होगा, स्टार्ट होगा। तो कॉन्फ़िगर तुमने पहले दिन ही किया कि फर्स्ट की का कॉन्फ़िगरेशन किया कि फर्स्ट की, फिर की का पासवर्ड दे दिया और की का लाइफ टाइम डिफाइन किया कि स्टार्ट होगा वो 1 तारीख को 1:30 में, खत्म होगा 7 तारीख को 1:30 में। दूसरा की का पासवर्ड अपने, अगर पासवर्ड सेम देते हो तो लॉजिक क्या है, फिर अलग अलग की का मतलब ही नहीं, फिर सेम ही पासवर्ड है तो दूसरे की का दूसरा पासवर्ड दोगे, उसका दूसरा लाइफ टाइम दोगे, वो 7:30 पे साथ होगा, जो 14 तारीख से 1:30 में खत्म होगा। तो ऐसे आप चारों की डिफाइन करके पहले ही तारीख को कॉन्फ़िगर करके रख दो। तो जैसे ही दो राउटर कॉन्फ़िगर कर लिए तो पहला की दोनों राउटर के बीच में चलेगा। जैसे 7 तारीख 1:31 होगा या 1:30 के टाइम पे ही पहला की डिसॉल्व हो जाएगा, दूसरा की से ऑथेंटिकेशन वापस होगा, दूसरे की यूज करके वापस फिर कम्युनिकेशन होगा। अगर दूसरा की का दूसरे साइड पे अगर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड कुछ गलत डाला है तो वो मैच नहीं करेगा, ऑथेंटिकेशन वहां पे डाउन है। या फिर पहले राउटर पे जो पहला की है वो गलती से 1:35 तक तुमने टाइमर एंड टाइम रखा है उसका, 7 तारीख को 1:35। और पहले राउटर पे जो वो सेम की था वो 7 तारीख को 1:30 पे खत्म हो चुका। तो 7 तारीख 1:30 पे पहले दूसरे राउटर पे दूसरा की स्टार्ट होगा और पहले राउटर पे अगले 5 मिनट वही की है, क्योंकि पहले राउटर पे 1:35 पे दूसरा की तुमने स्टार्ट की है। तो पहले राउटर पे 30 से 35 पहला की है और दूसरे राउटर पे 30 पे ही दूसरा की स्टार्ट हुआ। तो ये 5 मिनट में इसका पासवर्ड अलग है, इसका पासवर्ड अलग है, दोनों के बीच में नेबरशिप डाउन होगा। तो 5 मिनट में पूरा कम्युनिकेशन बंद। इसलिए प्रिकॉशन लेते वक्त ये लेना होता है कि जब तुम लोग कॉन्फ़िगर करोगे उसका टाइम एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, इसलिए बफर देते हैं हम लोग। कुछ फर्क नहीं होता तुम लोग आधे घंटे का पहला टाइम स्टार्ट किया तो पहला की अगर 1:30 में खत्म हो रहा है तो दूसरा की जो है वो 12:30 स्टार्ट करो। क्या होगा, 12:30 और 1:30 के बीच में 2 की चलेगा, लेकिन ऑथेंटिकेशन पहले की से ही होगा। पहला की जैसे ही एक्सपायर होगा दूसरा की इमीडिएटली है। गलती से अगर टाइम डिफरेंस दो के बीच में, अगर दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे भी पहला की स्टार्ट हो रहा है 1:30 में, या मान के चलते पहला की खत्म हुआ 1:30 में और दूसरा की स्टार्ट हुआ 1:35 में, 5 मिनट का वहां पे कोई भी की नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी सेम एज इट इज कॉन्फ़िगर किया, पहला की खत्म हुआ 1:30 में और दूसरा की स्टार्ट हुआ 1:35 में, यहाँ पे भी 5 मिनट कुछ भी नहीं है। तो दोनों के बीच में ऑथेंटिकेशन होगा या नहीं होगा, मतलब डेटा अपडेट शेयर होंगे या नहीं होंगे। हाँ हाँ शेयर होगा। ऑथेंटिकेशन फेल कब होगा, जब एक तरफ पासवर्ड एक तरफ नहीं है, या एक तरफ है और दूसरी तरफ गलत है। वैसे अगर तुम लोग अभी ये जब भी प्रैक्टिकल करोगे और ऑथेंटिकेशन नहीं दे रहे हो, तो इसलिए हमने पहले हर बार क्या डिस्कस कर रहे हैं, टू फाइंड एन नेबर, टू फॉर्म अ नेबरशिप, योर autonomous system number should be same, your k value should be same, authentication password if you do provide that should be same। तो वो 5 मिनट में दोनों के तरफ पासवर्ड है ही नहीं ना, तो बिना पासवर्ड का अपडेट शेयर होगा। लेकिन दूसरी तरफ पासवर्ड वो 5 मिनट में दिया है तो फिर नेबरशिप डाउन होगा ना। समझ में आ रहा है। तो बाय यूजिंग EIGRP यू कैन कॉन्फ़िगर की चेन। तो की चेन को एक नाम देना होता है, नेम इज योर चॉइस। देन यू कैन डिफाइन अ की 1। देन यू कैन डिफाइन अ पासवर्ड, की स्ट्रिंग, जो भी आगे पासवर्ड देना है वो दो। और देन यू कैन डिफाइन की लाइफ टाइम, की 1 का लाइफ टाइम क्या है, वो स्टार्ट कब होगा एंड कब होगा। और फिर दूसरा की कॉन्फ़िगर करो, उसका की नंबर की 2, उसका पासवर्ड की स्ट्रिंग सिस्को 1 2 3, फिर उसका की 2 का लाइफ टाइम स्टार्टिंग एंड, फिर तीसरा की। ये सेम तुम लोग नेबर पे भी करो।
हेलो, तो देखो क्या है, पहले सबसे पहले की चेन डिफाइन की, उसका एक नाम दोगे, लेट्स से की चेन वॉट एवर, दैट इज योर चॉइस। फिर उसके बाद में की उठाओगे, पहले की स्ट्रिंग इज नथिंग बट पासवर्ड, मतलब सबसे पहले की चेन कॉन्फ़िगर किया, की चेन में एक की हो सकता है क्या, मल्टीपल कीज हो सकते हैं, तो यू डिफाइन अ की चेन, की चेन के अंदर एक की कॉन्फ़िगर किया, मतलब डिफाइन किया की, लेट्स से की 1, उसको की स्ट्रिंग से एक पासवर्ड दिया और उसका लाइफ टाइम डिफाइन किया। ये कब से, अब ये कैसा है, ऑथेंटिकेशन आने वाले और जाने वाले दोनों पैकेट के लिए ऑथेंटिकेशन होगा, एक्सेप्ट सेंड, जो पैकेट आएगा वो भी ऑथेंटिकेट करके लेगा, जो अपडेट सेंड करेगा वो भी ऑथेंटिकेट करके करेगा, ठीक है। सो ये ठीक है, डिफरेंट ऑथेंटिकेशन टाइप, हाउ मेनी कीज, ये देखते हैं आप लोग क्या है। एस नंबर ऑथेंटिकेशन मोड, एक की मोर देन वन कीज डिफाइन, लाइफ टाइम डिफाइन करो, कॉन्फ़िगरेशन किधर गया इसका, ये देख, की चेन डिफाइन किया, की चेन का नाम दोनों साइड पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे की चेन का नाम एक दो, यहाँ पे की चेन का नाम दूसरा दिया तो भी चलेगा, लेकिन की वन, इस तरफ का की वन, इस तरफ का की वन सेम पासवर्ड होना चाहिए, इस तरफ का की टू, इस तरफ का की टू सेम पासवर्ड होना चाहिए और सेम लाइफ टाइम, ताकि की चेन का नाम दोनों राउटर पे अलग अलग लग सकता है, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, पहले की चेन को देखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा है सिंपल, मतलब अगर तुम्हें की चेन कंसेप्ट इंप्लीमेंट नहीं करना है तो सिंपल तुम लोग ऐसा दे सकते हो, पोर्ट के अंदर देखो, ये पोर्ट के थ्रू ही अपडेट जा रहा है, आ रहा है ना, तो हम ये चाहते हैं कि ये पोर्ट के थ्रू ऑथेंटिकेट हो, तो ये इंटरफेस के अंदर जा रहे हो, आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 110 MD5, मतलब यूज MD5 ऑथेंटिकेशन, ये जो ब्लैक किया है वो कमांड में है नहीं, ठीक है, ये टाइपो है। तो आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 10, सबसे पहले डिक्लेयर करो किस टाइप का ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हो, प्लेन टेक्स्ट या फिर इंक्रिप्टेड, तो तुमने डिक्लेयर किया इंटरफेस के जाके आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 110 MD5, 110 क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, तो वो जो भी आपका वो आप दोगे, मोड डिफाइन की MD5, ठीक है। तो ये दोनों तरफ होगा, जो दूसरा इंटरफेस है R2 पे भी सेम होगा, डायरेक्ट लिखना असेल, क्या क्या, प्लेन टेक्स्ट द्यायचं असेल तर डायरेक्ट लिहायचं, नहीं ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है, ये MD5 है, आणि प्लेन टेक्स्ट द्यायचं असेल तर डायरेक्ट हाँ लिहायचं. हाँ, तो ये मत दो, ठीक है। तो तुमने सबसे पहले डिफाइन किया कि दोनों तरफ ऑथेंटिकेशन होने वाला है और वो इंक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन होगा बाय यूजिंग मैसेज डाइजेस्ट फाइल इंक्रिप्टर, ये दोनों आमने सामने राउटर के अपने अपने वैन पोर्ट पे अपने ये कमांड चला दी, तो ऑथेंटिकेशन अभी काम करना स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक आपने पासवर्ड वगैरह कुछ डिफाइन नहीं किया, तो देखो सबसे पहले की चेन, ये नाम है, ये कुछ भी दो, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, ये दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। की वन, मतलब बस सबसे पहला की अपने उठाया, की स्ट्रिंग, ये कमांड है और आगे पासवर्ड जो देना है वो, ठीक है। तो ये की नंबर और वो की का पासवर्ड ये दोनों तरफ मैच होना चाहिए, मतलब यहाँ पे की वन को सिस्को है, यहाँ पे की वन को सिस्को 123 है, नहीं चलेगा, की का नंबर और की का पासवर्ड आइडेंटिकल होना चाहिए आमने सामने, की चेन का नाम कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, तो सेम अगर दूसरा की लिया तो दूसरे की का नंबर और दूसरे की का पासवर्ड वो दोनों तरफ आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बाद में क्यों लिखा, चलो यहाँ पे है ना इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, कीचेन नेम ऑफ योर चॉइस, ठीक है, ये कॉन्फ़िग मोड पे तुमने किया, कीचेन योर चॉइस, की वन, की स्ट्रिंग और वो पासवर्ड, फिर ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, फिर वापस एग्जिट किया, क्योंकि अभी तुम लोग ये जैसे ही तुम लोग की वन डाल के एंटर करोगे ना, वो की वन के अंदर गए तुम,
जैसे इंटरफेस डाल के जाते हो तो इंटरफेस के अंदर जाते हो, वैसे तुमने की1 डाल के एंटर किया तो फिर तुम्हें कॉन्फिग हाइफन की दिखेगा। इसका मतलब वो की1 के अंदर गए तुम लोग, और फिर ये की1 को तुमने पासवर्ड असाइन किया। तो ये की1 से बाहर निकलो तो एग्जिट करो, वापस कॉन्फिग मोड पे आओगे, फिर वापस की2 एंटर करोगे, फिर की2 को अलग पासवर्ड देंगे, और ये सेम एज इट इज नेबर राउटर पे कॉन्फ़िगर होगा। अब आते हैं इस पे, ठीक है। की तो दे दिया, की1 भी डिफाइन किया, की2 भी डिफाइन किया, लेकिन उसका लाइफ टाइम डिफाइन करना होगा, कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा। तो यहाँ के क्या लिखा है, एक्सेप्ट लाइफ टाइम, मतलब आने वाले पैकेट का कब स्टार्ट करना है ऑथेंटिकेशन। लेट से 4 बजे 1 जनवरी 2009 से, ये स्टार्टिंग टाइम है। हर एक आने वाले पैकेट को कब से ऑथेंटिकेशन करना है, 4 बजे जनवरी 1 2009 इंफिनिटी, मतलब एंड टाइम डिफाइन नहीं किया। मतलब ये हमेशा के लिए तुम्हारा की1 आने वाले ट्रैफिक को काम करेगा। दूसरा, सेंड लाइफ टाइम, जो अपडेट्स मैं सेंड कर रहा हूं उसका क्या स्पैन है, वो 4 बजे जनवरी 1 2009 से स्टार्ट होगा, और वो 4 बजे जनवरी 31 2009 को खत्म होगा। मतलब इन्होंने 30 दिन का स्पैन रखा। दूसरा की क्या किया है उन्होंने, दूसरे की क्या लाइफ टाइम 4 बजे जनवरी 25, मतलब ये 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था पहला की। दूसरा की उन्होंने किया कि जनवरी 25 को स्टार्ट होगा, उसका लाइफ टाइम क्या है, वो फॉर एवर चलेगा। लेकिन सेंड करने वाले पैकेट्स का लाइफ टाइम 4 बजे, वो भी 25 तारीख को स्टार्ट होगा, लेकिन वो भी उसका कोई एंड लिमिट नहीं दिए। तो अगर हम लोग दोनों देखते हैं यहाँ पे, ये तुमने पहला की कॉन्फ़िगर किया है, ये तुमने पहला की कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। की1 सेंड लाइफ टाइम का तुमने एंड टाइम दिया था, ये देखो सेंड लाइफ टाइम है ना, इसका एंड टाइम दिया था जनवरी 31। तो ये जनवरी 31 को ये पहला की तुम्हारा खत्म हुआ, किसका, अपडेट सेंड करने का। मतलब जो अपडेट सेंड कर रहा है उसको ऑथेंटिकेशन, पहले की का ऑथेंटिकेशन 31 जन को खत्म हुआ, लेकिन जो आने वाले जो अपडेट्स पैकेट्स है उसका की1 चलता रहेगा इन्फिनिटी। स्टार्ट टाइम दिया जनवरी 1, एंड टाइम कुछ नहीं दिया, एंड टाइम इन्फिनिटी दिया है, तो एंड टाइम चलता रहेगा। मतलब राउटर का सेंड करने का अपडेट भी ऑथेंटिकेट होगा, राउटर रिसीव करेगा अपडेट उसका भी ऑथेंटिकेट होगा। तो दोनों का ऑथेंटिकेशन टाइम तुम लोग अलग अलग चाहो तो भी दे सकते हो, जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना। लेकिन लॉजिक क्या है, दो अलग अलग टाइम देने का। अगर करना है कॉम्प्लेक्स तो करो, नहीं तो सिंपल रखो, एक की का सेंड और रिसीव उसी टाइम पे खत्म होगा, और उसी टाइम पे दूसरा की का सेंड और रिसीव स्टार्ट होगा ऑथेंटिकेशन। लेकिन अगर तुम्हें पहला की रखना है सेंड के लिए अलग, रिसीव के लिए अलग टाइम उसका, तो वो भी डिफाइन कर सकते हो। तो सेकंड की कब स्टार्ट हुआ, जनवरी 25 को। यहां पे देखो जनवरी 25 को लाइन है, सेकंड की स्टार्ट हुआ जनवरी 25 को। दोनों का स्टार्टिंग टाइम तो सेम है, लेकिन एंडिंग टाइम इन्फिनिटी है। तो ये जनवरी 25 से जनवरी 31 तक की1 भी एक्टिव है, की2 भी एक्टिव है। तो उस वक्त की1 काम करेगा, की1 जैसे ही 31 के आगे टाइम निकल गया की2 काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये ओवरलैप की है, समझ में आ रहा है। तो जो पहला कमांड था वो क्या था, जो इंटरफेस के अंदर दिया था वो किस लिए था, जो पहला कमांड था ना इंटरफेस के अंदर दिया था तुमने। हाँ, ये वाला कमांड, ये वाला कमांड क्या था, इंक्रिप्टेड पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन पहले कौन सा यूज करना है वो डिक्लेयर किया, क्या यूज करके ऑथेंटिकेशन किया है करना है वो अभी तक नहीं पता है ना। तो इंटरफेस पे कीचेन कॉन्फ़िगर किया तुमने, वो अप्लाई करोगे इंटरफेस पे जाके, ठीक है। कीचेन मतलब की का कौन सा पासवर्ड होना चाहिए, उसका लाइफ टाइम क्या है, दूसरे की का कौन सा पासवर्ड, उसका लाइफ टाइम क्या है,
लेकिन वो इंटरफेस पे आगे जगेगा, तभी वो इंटरफेस पे बैठ के सिक्योरिटी गार्ड बैठ के हर एक पैकेट को आइडेंटिफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, फिर एक्सेप्ट करेगा, सेंड करेगा। तो जो कीचेन है वो तुमने पहले कॉन्फ़िग मोड पे सब कुछ कॉन्फ़िगर कर लिया, उसके बाद इंटरफेस पे, या फिर ये पहले डिक्लेयर किया कि MD5 ऑथेंटिकेशन यूज होना है, लेकिन MD5 यूज करके क्या ऑथेंटिकेट करना है ये अभी तक डिफाइन नहीं किया। तो तुम लोग कह रहे हो कि क्या ऑथेंटिकेट करना है, ऑथेंटिकेट कीचेन विद दिस नेम। क्या ऑथेंटिकेट करे, कीचेन, इस कीचेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूज करके ऑथेंटिकेट कर। ये कीचेन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगा, कीज होंगे, कीज का पासवर्ड होगा, कीज का लाइफ टाइम होगा। समझ में आ रहा है? तो सेम ये आमने सामने तुम्हें करना होगा। मतलब वो ऑथेंटिकेशन करने में स्पेसिफिक है क्या क्या? वन पे वो एस नंबर है, वो देना होगा ना किसके लिए ऑथेंटिकेट करना। ये है जब, क्योंकि ये इंटरफेस है, इसमें तुम्हारा RIP भी चलता होगा, तो इसको बोलना है कि EIGRP के पैकेट्स ऑथेंटिकेट कर बाय यूजिंग कीचेन whose नेम इज लेट्स से सिस्को। तो सिस्को कीचेन के अंदर क्या होगा, सिस्को कीचेन के अंदर तुमने की 1 लिया होगा, उसको एक पासवर्ड दिया होगा, उसको लाइफ टाइम दिया होगा, की 2 लिया होगा, उसका पासवर्ड दिया होगा, उसका लाइफ टाइम दिया होगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये इंटरफेस पे आके जो भी ट्रैफिक आएगा जाएगा उसको ऑथेंटिकेट कर बाय यूजिंग कीचेन whose नेम इज सिस्को। सिस्को के अंदर तुमने पूरे कीज वगैरह, उसका टाइम, उसका पासवर्ड, सब कुछ तुमने डिफाइन किया है। ये देखो, पहले कॉन्फ़िग मोड पे तुमने पूरे कीचेन कॉन्फ़िगर किए, और फिर इंटरफेस पे जाके, ठीक है, ये पढ़ो समझ के लिए, जो हाईलाइट किया है वही समझ ले। हो गया? पहले क्या किया, कौन सा कमांड पहले देते हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जैसे तुम लोग ये कमांड डालोगे ना, फिर ऑथेंटिकेशन फेल होगा, क्योंकि कोई पासवर्ड ही नहीं डिफाइन किया। तो इसलिए जनरली पहले ये कॉन्फ़िगर करो, कीचेन पूरा कॉन्फ़िगर करो, उसको डिफाइन करो, और फिर पोर्ट पे जाके अप्लाई करो। तो पहले कीचेन डिफाइन किया, कीचेन सो एंड सो नेम, उसमें एक पहला की उठाया, उसको एक पासवर्ड दिया, उसका एक्सेप्ट एंड लाइफ टाइम डिफाइन किया, दूसरा की उठाया, उसको पासवर्ड दिया, उसका लाइफ टाइम डिफाइन किया, फिर जाके इंटरफेस के अंदर, जिसके, ये किस इंटरफेस के पे लगाओगे, ये वैन पे या लैन पे? वैन इंटरफेस पे लगाओगे या लैन इंटरफेस पे लगाओगे, या दोनों पे लगाओगे? हाँ, लैन पोर्ट पे लगाओगे, वैन पोर्ट पे लगाओगे, या दोनों पे लगाओगे? हाँ, ये ऑथेंटिकेशन किस पोर्ट पे अप्लाई करोगे, लैन पोर्ट पे, वैन पोर्ट पे, या दोनों चल सकता है? दोनों पे। बताओ। कितने लोग कहते हैं सिर्फ वैन पे लगेगा, सिर्फ लैन पे?
दोनों पे। बाकी ये क्या आहे? काहीच मत नाही, तो काहीच नाही. त्यांचं काहीच मत नसताना त्यांचं काही होऊ शकत नाही आयुष्यात. एवढं लक्षात ठेवा. चूक तर चूक, मत पाहिजे. बोलो. कितने लोग कहते हैं लैंड पे लगेगा? ये ऑथेंटिकेशन किसके साथ कर रहा है? तो लैंड पे लगा के क्या फायदा? स्विच के साथ कौन सा ऑथेंटिकेट करने वाला है? क्योंकि EIGRP का स्विच है क्या? ये EIGRP का कंसेप्ट चल रहा है. तो ये दो राउटर के बीच में ऑथेंटिकेशन होगा या नहीं होगा? तो दो राउटर के बीच में, इसका मतलब लैंड पोर्ट पे होना चाहिए. लैंड पोर्ट पे अगर तुम लोग कर रहे हो तो उसका मतलब नहीं बनता, क्योंकि लैंड पे तुम्हारा नीचे स्विच कनेक्ट है. उस पे कौन सा EIGRP एक्सचेंज हो रहा है अपडेट्स? जहां से अपडेट जाते हैं, कहां से जाएंगे अपडेट्स? आगे अगर कोई मतलब नेबरशिप फॉर्म किसके साथ होगा? राउटर के साथ. तो नेबरशिप अगर राउटर के साथ हो रहा है तो उस पोर्ट के थ्रू जाएगा वो सब कुछ, तो उसके उस पोर्ट पे मेनली चाहिए ऑथेंटिकेशन. लैंड पे कुछ मतलब नहीं है. अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है तो क्या होगा? ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुल है तो क्या होगा? हाँ, कैसे पता चलेगा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हुआ है? हाँ हाँ, इंटरफेस पे चेक करेंगे. नहीं, इंटरफेस पे तुमने क्या कॉन्फ़िगर किया वो दिखता है, लेकिन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ या फेल हुआ, कैसे पता चलेगा? सक्सेसफुल हुआ है तो पासवर्ड मांगे. कौन मांगेगा पासवर्ड? दूसरा राउटर. तो वो हमें थोड़ी पूछेगा पासवर्ड पता करके, उनके बीच में चल रहा है वो. हमें कैसे पता चलेगा कि ऑथेंटिकेशन हो गया है? हाँ, किसको पिंग करोगे? उसके लिए ऑथेंटिकेशन क्यों चाहिए? वो तो वैन लिंक है, वो तो वैसे भी पिंग होगा. हाँ, कसं समझना? ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हुआ तो क्या होगा? अरे तू काय बाहेरून मला म्हणणार आहे का पासवर्ड एंटर कर म्हणून? ते त्यांच्या चाललंय ते. मी कुठे येतो? एडमिन की तरह है पिक्चर में. उनके थ्रू चल रहा है कुछ. वो VTP में तुमने पासवर्ड पूछा था क्या? उसने तुम्हें पूछा था क्या VTP पासवर्ड डाल करके? उनके बीच में उन्होंने चेक किया बैकएंड पे, मेरा पास ये सर्वर का पासवर्ड सेम है, क्लाइंट का पासवर्ड सेम है, ऑथेंटिकेशन हुआ, VTP इंफॉर्मेशन शेयर हुआ. तो यहाँ पे भी बैकएंड पे चल रहा है. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑथेंटिकेशन फेल हुआ या सक्सेसफुल हुआ? ये स्लाइड के बाद ये स्लाइड देने का कुछ मतलब है क्या? क्यों दिया ये स्लाइड? इससे पता चलता है कि नहीं कुछ? क्या पता चलता है? हाँ, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो तो क्या होगा? नेबरशिप फॉर्म होगा. तो नेबर टेबल में नेबर दिखेगा. अगर शो आईपी EIGRP नेबर करोगे ब्लैंक दिखेगा, इसका मतलब नेबरशिप फॉर्म नहीं हुआ. क्यों नहीं फॉर्म हुआ? क्योंकि ऑथेंटिकेशन 3 पैरामीटर सेम होना चाहिए. अगर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड अगर मिसमैच हो या कोई भी एक इशू हो तो नेबर टेबल में नेबर नहीं दिखेगा. नेबर टेबल में नेबर नहीं दिखेगा तो खत्म, आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा. ठीक है. जो की चेंज करके तुमने जो की कॉन्फ़िगर किया उसका पूरा डिटेल दिख जाएगा. की का क्या पासवर्ड है, लाइफ टाइम वगैरह सब कुछ. डीबग जनरली जो कमांड है वो यूज होता है बैकएंड प्रोसेस. डीबग कमांड यूज होता है बैकएंड पे जो भी प्रोसेस चल रहा है. ये डीबग के सिर्फ EIGRP के लिए नहीं है. इसका ऑन है. तो फिर
माइक बंद कर। तो अपडेट दैट मीन्स डीबग। डीबग कमांड क्या है? हम लोग जो डिस्कस करते हैं RIP, EIGRP, OSPF, जो भी तुम लोग डिस्कस करो, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखना हो तो कि वाकई में EIGRP का हेलो जाता है या नहीं जाता। EIGRP का अपडेट बोल तो रहे जाता है करके, तो डीबग कमांड यूज करो। डीबग EIGRP पैकेट्स। तो बैकएंड में वो दिखाता है कि EIGRP का पैकेट जा रहा है, अपडेट पैकेट आया, ये दिखता है। फिर OSPF का रहेगा, RIP का रहेगा, ये सब कुछ पूरा डीबग करने में सब कुछ पता चलता है, तो कंटिन्यूस दिखता रहेगा। जनरली कॉर्पोरेट में कभी भी डीबग कमांड नहीं चला। क्यों? क्योंकि डीबग बहुत सारा प्रोसेसिंग पावर खाता है। तो अगर लाइव नेटवर्क में अगर डीबग अगर चलाओगे तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली अपडेट दिखते रहेंगे। तो प्रैक्टिकल करते टाइम तुम लोग ये देख सकते हो, कंटिन्यूस चलता रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं, कंटिन्यूस ऑन रहेगा। तो ऑफ करना है तो ये कमांड वापस लो, पहले नो लगाओ, बंद करो, लेकिन उतना टाइम वो दिखेगा भी नहीं तुम्हें, वो उतना टाइम देगा ही नहीं प्रॉम्प्ट मिलने में। तो तुम्हें सिर्फ ब्लाइंडली सिर्फ टाइप करके छोड़ देना, वो बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकल करते हो तुम लोग उसको देख सकते हो डिबग करके। तो ये दिख जाएगा कि हेलो पैकेट आया, हेलो पैकेट गया, ऑथेंटिकेशन हो रहा है, की आईडी क्या है, की आईडी मिसमैच है, तो अगर मिसमैच है तो उसका एरर भी दिखाएगा डिबग में कि की आईडी मिसमैच या की स्ट्रिंग मिसमैच। अगर की मिसकॉन्फ़िगर किया है तो डिबग करते वक्त दिखेगा पैकेट की आईडी टू ऑथेंटिकेशन मिसमैच। क्यों? क्योंकि एक राउटर पे की 1 कॉन्फ़िगर्ड है, उसी टाइम पे दूसरे राउटर पे की 2 कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये डिबग करके तुम्हें पता चल सकता है कि ऑथेंटिकेशन तो तुमने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर तो किया है, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा। पढ़ो। ठीक है, EIGRP को कितना बचे? एक और एक टॉपिक बचा है EIGRP का, वो कर लेंगे, फिर उसके बाद पूरा तुम्हारा EIGRP का जो है पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, अरे ऑनलाइन में प्रैक्टिकल, ऑनलाइन में तब जो ऑनलाइन क्लास आप थर्सडे फ्राइडे उसमें प्रैक्टिकल में पढ़ना है। थर्सडे फ्राइडे की हाँ, अगर कुछ भी हो, प्रैक्टिकल हो या थियरी हो, ऑनलाइन में अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं करके बताऊंगा, तुम लोग घर पे करोगे। अभी वो टाइम गया कि हर एक का चेक करते बैठू मैं।
जब पूरा रिकॉर्डेड रहेगा तो वो देख के टाइप करने भी अगर तुम लोग गलती करोगे तो एक प्रैक्टिकल करने में 4-4 5-5 दिन लगेंगे। HSR पे किया ना 5 दिन। तो अभी हाँ, पहले सीन क्या था, पहले बैच का मैं समझ रिकॉर्डेड नहीं था तो उनको याद नहीं रहता था क्या करना है क्या नहीं। अब तुम लोग रिकॉर्डिंग देख के भी अगर तुम लोग सेम एज इट टाइप करके गलती कर रहे हो तो फिर उस पर क्या कर सकते हो। तो पहले मैं पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, फिर बाद में तुम उसको घर पे करो। ठीक है, तो कल तुम्हारा एक थियरी लेक्चर होगा। कल तुम्हारा थियरी EHRP खत्म होगा। कल क्या है, ट्यूसडे। फिर वेनसडे को पूरा एक दिन में पूरा EHRP का प्रैक्टिकल बताऊंगा 3 घंटे में। तो वेनसडे का टाइमिंग थोड़ा सेट करते हैं 3 घंटे का। फिर तुम लोग वो प्रैक्टिकल उसी दिन घर पे करोगे। थर्सडे को मुझे वो प्रैक्टिकल नहीं चाहिए वापस। थर्सडे की ये कुछ हुआ है नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत माइनर इश्यूज है तो मैं देख लूंगा। वो कुछ हो ही नहीं रहा तो घर पे जाओ। ठीक है, चलो आज रुकते ही यहीं पे। जो होगा वो वापस रिपीट नहीं होगा।